Hello students, कैसे हो आप सब लोग? I hope all of you are doing good and fine. Guys, myself Lohit Jindal and I welcome you all in our next session of INMO flashback series. So guys, in this series we are solving previous year INMO question papers starting from year 2000. So far we have solved the question papers from year 2000 to 2007. So 8 years worth of papers have been completely solved. Okay, you can check those videos out on our channel as well. Playlist भी बना हुआ है, you can check it in there as well. Okay, so guys, right now we are currently going through INMO 2008. So far हमने उसके भी 3 questions कर लिए हैं, right? So in today's session we are going to solve the 4th question of INMO 2008. Okay, so before starting, थोड़ा logical question है. You will say maybe it is leaning towards permutations and combinations. Logical thinking के ऊपर based है थोड़ा question तो, but you'll be able to understand it, right? But specifically you cannot pinpoint कि किस chapter का question है वो, and it's all about logical thinking. थोड़ा combinatorics की तरफ lean कर रहा है, that's it. Okay, so guys, let me introduce myself. My name is Lohit Jindal. I've done my BTech from IIT Bombay and I've been teaching mathematics since past say 9+ years since graduating for various competition exams like IIT JEE, Maths Olympiads and KVPY etc. right? तो guys, आज का क्वेश्चन मैं शो कर देता हूं पहले आपको. लेट मी शो यू द क्वेश्चन. ओके, सो गाइज आई जस्ट रिक्वेस्ट यू वन थिंग गाइज, राइट, कि क्वेश्चन को ना पहले रीड करके आई विल रिक्वेस्ट यू गाइज कि प्लीज पॉज द वीडियो वंस एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ फर्स्ट. आप इसको अपना अच्छा सा अटेम्प्ट दो. इफ यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन देन दैट इज वेल एंड गुड, है ना. फिर आप सोल्यूशन देखोगे, यू विल गेट टू नो मे बी द मेथड माइट बी डिफरेंट. सो आपको सही है कि गलत है वो भी समझ में आ जाएगा. एंड अदरवाइज अगर आपसे नहीं भी सॉल्व हो पाता है गाइस, प्लीज गिव दिस अ गुड अटेम्प्ट फॉर एटलीस्ट 1.5 hour to 2 hours. इतना टाइम इसको स्पेंड करना चाहिए so that you are able to get a insight about this question properly. उसके बाद नहीं भी होता है तो if you watch the solution you'll get immense learnings from this, क्योंकि आपको ये भी पता लगेगा क्या सही है, क्या सही है, क्या गलत है, और वो गलत क्यों है ये भी आपको पता लगेगा. and that is as much important as knowing why is it right? So that is very important. Okay, so guys, please pause the video and try करो solve करने का question को. Okay, and after that I am going to start the discussion. Okay, so guys, I hope सबने attempt कर लिया इस question को. Okay, now we are going to discuss this question. So let us understand what does this question say. All the points with integer coordinates in the xy plane are colored using 3 colors, red, blue and green. Red, blue और green कलर से यूज कर रहे हैं. हर कलर को एटलीस्ट एक बार आना है, एटलीस्ट एक बार. ऐसा हो सकता है कि एक ही बार आए, मतलब वो हो सकता है, राइट. नाउ इट इज नोन दैट, ओके, मैं गाइस डायग्राम क्रिएट कर देता हूं यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लिए, राइट. यू कैन, आई विल ड्रॉ दिस थिंग, राइट. तो गाइस क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में देखो. इट इज गिवन दैट द ओरिजिन पॉइंट इज कलर्ड रेड. सो लेट मी कलर इट रेड. ठीक है, यहाँ पे रेड कलर्ड है 0,0, राइट. दिस इज रेड, the point is 0,0. ठीक है, and then what, it is known that 0, 0 is colored red and the point 0,1 is colored blue. okay, blue color कर देते हैं. this is colored blue, this is 0,1, right. ये दो आ गए guys, ये दोनों फिक्स है, ये गिवन है हमें पहले से. now what we have to prove is that there exist 3 points with integer coordinates of distinct colors which form the vertices of a right angle triangle. तो guys अपना पर्पस ये है कि वी हैव टू प्रूव दैट कि इस प्लेन पे अभी हमें अब रेड ब्लू तो 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, बाकी सारे जो इंटीरियर कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी तो कुछ ना कुछ कलर्ड है, रेड, ब्लू या ग्रीन, राइट. व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज आई शुड बी एबल टू फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल विद द वर्टिसेस, विद 3 डिफरेंट वर्टिसेस, ब्लू, ग्रीन एंड रेड, विच विल फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल. पक्का बना सकता हूं, ऐसा मुझे प्रूव करना है कि बन ही जाएगा, ये प्रूव कर रहे हैं हम यहाँ पे. ठीक है, सो लेट अस मेक डिफरेंट केसेस गाइस. ठीक है, केसेस बनाते हैं डिफरेंट, ठीक है, उससे क्लैरिटी आएगी. सो गाइस लेट अस स्टार्ट. देखो ये दो पता है मुझको, राइट. सो लेट अस थिंक अबाउट वन थिंग गाइस. केस 1 हम डिस्कस करते हैं पहले केस 1 सोचते हैं गाइस. इफ द ग्रीन कलर्ड, जो ग्रीन कलर वाला है गाइस, इफ G इज एनीवेयर, if G is anywhere on y equal to 0 or y equal to 1. तो गाइज एक्स वाई इक्वल टू 0 लाइन मतलब एक्स एक्सिस, ये वाली जो लाइन है, एंड y इक्वल टू 0 का मतलब y इक्वल टू 1 का मतलब है एक्स हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू दिस 0,1 है ना, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी ऐसे, राइट, लाइक दिस, दैट इज y इक्वल टू 1. ठीक है, मैं शो नहीं कर रहा हूं,
ओके, लेट मी ड्रॉ इट। ओके, ठीक है। तो गाइज हम बोल रहे हैं, देखो गाइज सिंपल सा लॉजिक है, इफ g इज एनीवेयर ऑन द x एक्सिस, मतलब x इक्वल टू 0 के ऊपर कहीं पे भी ग्रीन आ गया देखो, ठीक है, सो दिस विल फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल ना, ये बन गया यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल, इन दोनों के साथ ही बन गया, राइट, दिस फॉर्म्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, करेक्ट, ये बात तो क्लियर हो गई। एंड इफ एनीवेयर g इज एनीवेयर ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन एज वेल, अगर यहाँ पे कहीं पे भी हुआ, यहाँ पे ग्रीन हुआ यहाँ पे, ठीक है, मतलब लाइक c, 1 हो गया एक तरह से, तो ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, इधर से बन जाएगा देन, राइट, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल और इट्स दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, अगर आप इसको ज्वाइन कर दोगे तो ये वाला है, राइट। दीज टू केसेस आर क्लियर, मतलब g अगर कहीं पे भी x एक्सिस के ऊपर हुआ, y इक्वल टू 0 के ऊपर हुआ या y इक्वल टू 1 के ऊपर हुआ, देन राइट एंगल इज फॉर्म्ड श्योरली, है ना, देन द राइट एंगल is formed, ठीक है, विद एनी ऑफ द ब्लू एंड रेड, जो पहले दो वाले हैं, है ना, फॉर्म्ड विद, आप ये बोल सकते हो विद ग्रीन एंड 0,0 एंड 0,1, इन तीन वर्टिसेस के साथ आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, जिसके तीनों पॉइंट्स, तीनों वर्टिसेस डिफरेंट कलर के होंगे, राइट। ये वाला केस तो बहुत इजी हो गया, ठीक है। अब हम बात करना चाहेंगे जब g कहीं भी और है, x y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 के ऊपर नहीं है, उसके अलावा कहीं और पे, अब उनके ऊपर केसेस बनाते हैं, ओके। नाउ लेट अस मूव फर्दर, केस 2, ओवरऑल केस 2 का क्या मतलब है, g डज नॉट लाई ऑन, ओके, ओवरऑल केस 2 का मतलब है इफ g डज नॉट लाई ऑन y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1, अगर उनके ऊपर लाई नहीं करता, उसको सॉल्व करेंगे अब हम, उसके तीन सब केसेस बनाते हैं गाइस, ठीक है। अब देखो g की पोजीशन तो कुछ p, q मान लो, कोई वर्टेक्स होगा उसका p, q, लेट अस से, बट उसके आगे मैं कुछ कंडीशंस बनाना चाहूंगा, ओके, फॉर दैट आई विल हैव टू रब दीज केसेस, राइट, इसको मैं रब कर देता हूं, सो विल वर्क ऑन दिस ओनली अगेन, चलो एक और नया डायग्राम बना लेता हूं, ओके, आई विल कॉपी इट आउट, ओके, जस्ट वेट फॉर, oh sorry, right guys, so let me copy it, okay, sorry, ठीक है गाइस, सो बी केस के लिए मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, ओके, इस तरफ रख रहा हूँ, ओके, आई विल राइट इट हियर, नाउ आई डोंट नीड दिस, these cases, right, oh sorry, all right, now this is what we were given, right। अब केस 2 को सॉल्व करना शुरू करते हैं गाइस, ठीक है। सो फर्स्ट सब केस, गाइस ध्यान से देखना और बहुत ध्यान से सुनना, ओके, प्लीज लिसन टू इट केयरफुली। सो फर्स्ट केस इज गाइस, लेट्स से जो y इक्वल टू 0 लाइन है, जो y इक्वल टू 0 लाइन है, लेट्स से उसके ऊपर कहीं पे कोई ब्लू पॉइंट है, ओके, लेट c, 0 बी ब्लू, ठीक है, कुछ ब्लू कलर्ड है मान लेते हैं, तो वो मैं मार्क कर लेता हूं, लेट्स से देयर इज सम पॉइंट c, 0 विच इज कलर्ड ब्लू, करेक्ट, हो सकता है, ठीक है, अदरवाइज तो मेरे को ये मानना पड़ेगा ना कि सारे ही रेड है, तो पहला केस ये मान रहा हूं, लेट अस से कि x एक्सिस के ऊपर कहीं पे तो कोई एक पॉइंट है विच इज कलर्ड ब्लू, लेट्स से, ठीक है। सो इन दैट केस नाउ ग्रीन क्या है, ग्रीन समवेयर हियर, राइट, ओके, तो मान के चल रहे हैं ग्रीन, तो मैंने बोला ना जनरल है कुछ, नाउ ग्रीन इज सम p, q दैट इज ग्रीन कलर, राइट, ये लॉजिक बन गया गाइस। नाउ गाइस अब इस केस में क्या बात बनेगी, थिंक अबाउट दिस, क्या बोलेंगे गाइस, टेक प्रोजेक्शन ऑफ ग्रीन, ओके, टेक प्रोजेक्शन ऑफ, टेक प्रोजेक्शन ऑफ ग्रीन p, q ऑन y इक्वल टू 0, तो क्या पॉइंट हो जाएगा, लेट अस टेक द प्रोजेक्शन, ओके, लेट अस टेक दिस प्रोजेक्शन, तो ये वाला पॉइंट आ गया, ओके, लेट्स से दैट पॉइंट इज कुछ लिख लेते हैं, इसका पॉइंट आ जाएगा p, 0, d पॉइंट मान लेते हैं, p, 0 पॉइंट है, राइट, कोऑर्डिनेट इज p, 0, गाइस जो ये प्रोजेक्शन हमने ड्रॉप किया, टेक प्रोजेक्शन ऑफ g ऑन y इक्वल टू 0, ये दैट पॉइंट इज p, 0, नाउ गाइस isn't that going to be either red or blue, isn't it,
वो रेड होगा या ब्लू होगा, कोई एक पॉसिबिलिटी तो होगी ना, राइट? सो लेट मी शो यू गाइज, अगर वो रेड हुआ, देखो गाइज, इफ इट इज रेड, ओके, इसमें बनाते हैं इफ p कॉमा 0 इज रेड, मैं r यूज कर रहा हूं रेड के लिए, देन ट्राइंगल के वर्टिसेस क्या बने, देन द राइट एंगल ट्राइंगल वर्टिसेस आर वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल आर क्या होंगे, p कॉमा q, p कॉमा 0 एंड c कॉमा 0। ये हो गया गेम, है ना, ये वाला बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। एंड अदरवाइज इफ p कॉमा 0 इज ब्लू, अगर ब्लू होगा, रेड या ब्लू में से कुछ तो होगा, अब रेड और ब्लू दोनों केसेस की बात कर रहे हैं, अगर ब्लू हुआ देन वर्टिसेस आर, अगर ब्लू हो गया गाइस देन ओरिजिन जो कि रेड है, देन p कॉमा 0 जो कि ब्लू है, एंड p कॉमा q विच इज ग्रीन, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, देख रहे हो? सो रेड मतलब आप इसको ज्वाइन करके देख सकते हो, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा या तो, राइट? इफ इट इज ब्लू देन ब्लू रेड ग्रीन, ये बन गया। अगर वो रेड है, इफ इट इज रेड देन दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल अगेन, ठीक है? आइदर वे राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, दैट थिंग इज क्लियर। तो अब आप बोलोगे सर क्या पता c कॉमा 0 ब्लू ना हो, रेड होता तो, ठीक है गाइस, वी आर वर्किंग अंडर द कंडीशन इफ देयर इज एटलीस्ट वन ब्लू, एक कहीं तो कोई भी ब्लू हुआ तो ये गेम है तो आप कर ही सकते हो ना, ये गेम तो आप प्ले कर ही सकते हो, करेक्ट? दिस गेम यू कैन प्ले देन राइट एंगल ट्राइंगल वाली बात तो, ठीक है? बट नाउ सेकंड केस इज, सॉरी, so guys the second case is let c comma 1 be red। सेम तरीके से गाइस, वेरी मच सिमिलर वे, अगर हमने कहा c comma 1 मतलब, अब मैं दूसरे पहला देखो, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, when g does not lie on 0 comma y equal to 0 और y equal to 1, हम केस 2 के अंडर की बात कर रहे हैं कि हमने बोला कि x एक्सिस के ऊपर कहीं पे लेट से एक भी ब्लू पॉइंट हुआ, c comma 0 पे मान लिया वो हमने, तो इन दैट पर्टिकुलर केस वी प्रूव्ड कि राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, करेक्ट? राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा इन दैट केस। अब हम सेकंड केस बात कर रहे हैं कि अगर y इक्वल टू 1 के ऊपर कोई भी रेड पॉइंट हुआ, बाय द सिमिलर वे, एग्जैक्टली द सेम वे, मैं आपको दिखा देता हूं। लेट से अब इस लाइन के ऊपर जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है, ठीक है? नाउ इन ऑन दिस लाइन लेट से देयर इज सम पॉइंट c कॉमा 1, ठीक है, विच इज रेड, मैं उसको रेड कलर कर देता हूं, लेट से दिस इज रेड, ठीक है? अब आपके पास ब्लू कलर है, रेड कलर है, अगेन क्या कहेंगे, फिर से हम यही बोलेंगे, टेक प्रोजेक्शन ऑफ p कॉमा q बट दिस टाइम ऑन y इक्वल टू 1। सो टेक प्रोजेक्शन ऑफ p कॉमा q जो कि ग्रीन है ऑन y इक्वल टू 1 दिस टाइम, सेम लॉजिक यूज करूंगा जो पार्ट 1 में यूज किया है, ठीक है? तो ये वाला जो पॉइंट होगा गाइस, द ओके आई कलर इट समथिंग डिफरेंट, ओके चलो कोई बात नहीं। तो ये वाला जो पॉइंट होगा गाइस विच इज p कॉमा 1, ये वाला पॉइंट अगेन इट विल आइदर बी रेड और ब्लू, इट विल आइदर बी रेड और ब्लू, ठीक है? सो अगेन गाइस इफ इट इज रेड देन रेड ब्लू ग्रीन का ट्राइंगल बन गया, देन इसका ट्राइंगल बन जाएगा ना, देन दिस विल बी द ट्राइंगल दैट इज फॉर्म्ड, राइट? अगर रेड है तो ये वाला ट्राइंगल बन गया, लेट मी मार्क द पॉइंट्स, इफ p कॉमा 1 इज रेड तब क्या होगा, देन वर्टिसेस मैं सीधा ही लिख देता हूं, ठीक है? तो तब वर्टिसेस क्या बनेंगे, वर्टिसेस विल बी 0 कॉमा 1 विच इज ब्लू, देन p कॉमा 1 विच इज रेड, एंड p कॉमा q विच इज ग्रीन एनीवेज, ठीक है? अब अगर ब्लू हुआ तो इफ p कॉमा 1 इज ब्लू, अब क्या करोगे आप, वो ब्लू है, ठीक है? ओके, तो इन दैट केस आप यहां पे प्रोजेक्शन ले सकते हो, सॉरी, शुड वी हैव टेकन ऑन द y इक्वल टू 0 लाइन, ओके नहीं, ग्रीन ब्लू एंड रेड कहां पे लोगे, ओके c कॉमा 1 रेड था ना, नाउ यस c कॉमा 1 वाज रेड,
तो क्या करोगे, अगर ये ब्लू हुआ देन c, 1 0 p, 1 एंड p, q, फिर ये वाला राइट ट्राइंगल बन जाएगा, राइट। आई एम जॉइनिंग दिस, सो दिस विल बी द राइट एंगल ट्राइंगल। सो इफ p, 1 इज ब्लू, ये हम लेके चल रहे हैं, तो इस केस में वर्टिसेस क्या बनेंगे देख सकते हो। देखो इस केस में वर्टिसेस क्या बनेंगे, p, 1 c, 1 एंड p, q, राइट। सो ये वाले वर्टिसेस आपके बन जाएंगे अगेन। सो मतलब ये इट इज वेरी मच एनालॉगस टू द फर्स्ट पार्ट, है ना, वेरी मच सिमेट्रिक टू द फर्स्ट पार्ट। मतलब जैसे इस फर्स्ट पार्ट में कर रहे हो वैसे आप सेकंड पार्ट में भी प्रूव कर सकते हो, राइट। तो गाइस देखो, थ्रू द फर्स्ट केस एंड द सेकंड केस व्हाट डिड वी प्रूव, कि फर्स्ट केस में हमने बोला लेट्स से पूरी एक्स एक्सिस के ऊपर y इक्वल टू 0 के ऊपर कहीं तो कोई ब्लू पॉइंट होगा, तो उस केस में बन जाएगा। या फिर y इक्वल टू 1 के ऊपर कहीं पे भी रेड पॉइंट हुआ तो भी प्रूव हो जाएगा। अब कौन सा केस बचा, मतलब अगर x एक्सिस के ऊपर एक भी पॉइंट ब्लू ना हो, सारे के सारे रेड होने चाहिए, यही मतलब हुआ ना, क्योंकि एक भी ब्लू हुआ तो हमने फर्स्ट केस कर दिया, ठीक है। और y इक्वल टू 1 के ऊपर अगर हमने कहा कि कोई भी रेड पॉइंट है तो भी कर दिया हमने, ठीक है, प्रूफ। तो रेड नहीं होना चाहिए कोई भी, सारे ब्लू होने चाहिए। सो द थर्ड केस, ओके, लेट मी स्क्रॉल डाउन अ बिट। सो गाइस इसमें थर्ड केस क्या बनेगा, ओके, सो थर्ड केस जो बनेगा दैट इज इफ y इक्वल टू 0 लाइन के ऊपर आर ऑल रेड एंड y इक्वल टू 1 आर ऑल ब्लू, ठीक है ना। मैं इसको फिर से कॉपी करके यहां पे रख लेता हूं तो बेटर समझ में आ जाएगा। Let me remove the drawings. ओके, ऑलराइट। सो अब इसका क्या मतलब है गाइस, अब यही केस बचा ना कि हमने ये बोल दिया कि एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी ब्लू होगा तो काम अपना हो जाएगा, y इक्वल टू 1 के ऊपर कोई भी रेड हुआ तो भी काम हो जाएगा। अब हमने उल्टा कर दिया, इसका मतलब सारे के सारे ब्लू हैं, ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन आर ब्लू, ठीक है। लेट मी कलर इट विद ब्लू लाइन इटसेल्फ, ठीक है, चलो इधर कर देता हूं सिर्फ। तो गाइस लेट्स से ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन आर ब्लू, सारे इंटीजर पॉइंट्स जो हैं, है ना। ऐसे ही जो एक्स एक्सिस है इसके ऊपर सारे क्या हैं, रेड हैं। सो गाइस इन दैट केस हाउ डू यू फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल, वेरी इंटरेस्टिंग। तो गाइस हम क्या बोलते हैं, लेट्स से देयर इज सम ग्रीन पॉइंट, यहां पे कोई तो ग्रीन पॉइंट होगा, अगेन p, q पे मान लिया, ठीक है। इसकी हाइट क्या होगी गाइस, व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस पॉइंट, दैट इज q, ठीक है। गाइस एक बात सोचो, अब राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल बना लेता हूं, कैसे, लेट मी शो यू, थोड़ा डायग्राम बेटर बना सकते हैं, वो कर लेते हैं, ओके। लेट अस से p, q, दैट इज अ ग्रीन कलर, ठीक है। सो गाइस इसकी हाइट कितनी है, जैसा मैंने आपको बताया q है ना। सो इफ आई टेक q पॉइंट्स, राइट साइड चले जाता हूं, यहां पे q पॉइंट इस पॉइंट से एंड दिस पॉइंट इज p, 0, राइट। सो बेसिकली मैं कोऑर्डिनेट क्या ले रहा हूं, p प्लस q, 0, एंड उतना ही पीछे आ जाता हूं यहां पे कहीं पे p माइनस q, 0 पे, ठीक है। सो बेसिकली उसका प्रोजेक्शन लिया हमने p, q का नीचे, और जितना हाइट था उतना ही लेफ्ट चला गया, उतना ही राइट चला गया, एंड आई जॉइंड दीज पॉइंट्स, राइट। नाउ जॉइन दीज पॉइंट्स, मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया आपके सामने, देखो कैसे, बिकॉज द हाइट इज सेम एज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो ये एंगल 45 हो गया, दिस एंगल विल बिकम 45 डिग्री ना, एंड ये वाला भी 45 डिग्री बनेगा, तो ये तो 90 बन गया ना। इट इज एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल, राइट। ये प्रोसेस समझ में आ रहा है, ठीक है। और हमें क्या पता है इसमें, देखो फिलहाल हमने हॉरिजॉन्टल पे सारे पॉइंट्स रेड हैं, वो वाले पॉइंट्स चूज कर लिए हैं, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। गाइस सिंस दिस लाइन, मैं इसको नाम दे देता हूं इस ट्राइंगल को, लेट्स से ए बी, ओके बी नहीं यूज करेंगे, ऐसे करते हैं एक्स वाई जेड मान लेते हैं, है ना। लेट्स से दिस ट्राइंगल इज एक्स वाई एंड जेड। तो गाइस जो ट्राइंगल एक्स वाई जेड आपका बन रहा है यहाँ पे, राइट, डोंट यू थिंक जो वाई जेड को ज्वाइन करने वाली लाइन है, दैट लाइन इज एट एंगल 45 डिग्रीज,
तो ये लाइन तो सभी इंटीजर पॉइंट से पास करती हुई निकलेगी ना, क्योंकि अगर आप एक यूनिट लेफ्ट को आओगे देन व्हाट इज दिस कोऑर्डिनेट गोइंग टू बी, p प्लस क्यू माइनस वन, राइट, p प्लस क्यू माइनस वन, लेफ्ट हैंड साइड को एक यूनिट आए तो हाइट भी एक यूनिट गई हो है ना, कॉमा वन, राइट, दिस इज व्हाट इट शुड हैपन। आप एक्स डायरेक्शन में एक यूनिट इधर को आए तो एक यूनिट ऊपर भी गए उस लाइन के ऊपर, राइट, दैट इज द पॉइंट। सो गाइज अब आपको ये सोचो, आई हैव टू फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट, विद द डिफरेंटली कलर्ड पॉइंट्स। तो बहुत सिंपल नहीं है, ये वाला कलर तो कितना है, ये कलर तो ब्लू है ना, एंड ये वाला कलर क्या है, रेड एक्स पे। सो डोंट यू थिंक दैट दिस इज द ट्राइंगल दैट विल बी फॉर्म्ड, विच इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, इसको के पॉइंट मान लेता हूं मैं। सो गाइज डोंट यू थिंक द ट्राइंगल एक्स के जेड is right angle, is right angle, right? लॉजिकली यही बना ना, देखो हमेशा आप एक वर्टिकल आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल बना सकते हो, जितनी हाइट जी की है उतने ही यूनिट उसका प्रोजेक्शन लेके लेफ्ट राइट चले जाओ, लेफ्ट और राइट चले जाओ, सो यू विल बी फॉर्मिंग अ इक्वल आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल ऑलवेज। ये बन गया। वंस दैट इज फॉर्म्ड, जो लाइन होगी आपकी उस पॉइंट को उन दो पॉइंट्स में से ज्वाइन करने वाले के साथ, that will be passing through the blue line, और इंटीजर पॉइंट से पास करेगा, that is the important thing, इंटीजर कोऑर्डिनेट के थ्रू ही पास करेगा, बिकॉज एंगल आपने लाइन बनाई है 45 डिग्री पे, तो इंटीजर से अगर आप स्टार्ट हुए हो बाय गोइंग 1 यूनिट ऑन द एक्स एक्सिस, आपकी हाइट एक यूनिट से बढ़ रही होगी, है ना, या फिर अगर आपकी हाइट एक यूनिट से बढ़ रही है हॉरिजॉन्टली भी आप एक यूनिट से ही मूव करोगे, दैट इज एडवांटेज ऑफ 45 डिग्रीज यहाँ पे, है ना। तो ये पास जो ब्लू लाइन को जहां पे भी कट करेगा उस पॉइंट को आप एक्स के साथ ज्वाइन कर सकते हो, तो ये लाइन ट्राइंगल राइट ट्राइंगल बन गया, या फिर आप इधर भी बना सकते हो राइट एंगल ट्राइंगल, तो सॉरी, और इधर यू कैन फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल ऑन दिस डायरेक्शन, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दो, तो ये भी तो राइट एंगल ट्राइंगल फिर से बन गया, इसको एन मान लो, सो वाई एन जी दैट इज ऑल्सो राइट एंगल ट्राइंगल, तो किसी भी तरफ मोड़ दो राइट एंगल ट्राइंगल तो बन ही जाएगा, बिकॉज दिस कोऑर्डिनेट इज अगेन रेड, ये वाला ब्लू है एंड वो ग्रीन हो गया, राइट। सो हमने गाइस अब थर्ड केस में वो वाला केस कंसीडर कर लिया कि अगर एक्स एक्सिस के ऊपर या y इक्वल टू 0 के ऊपर सारे रेड हैं, y इक्वल टू 1 के ऊपर सारे ब्लू हैं, तो भी आपने प्रूव कर दिया कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन ही जाएगा। एंड अगर वो दोनों केस नहीं होते हैं तो इट इज आइदर ऑफ द सब पार्ट 1 और 2, कोई एक ब्लू या एक रेड मारना पड़ेगा वो किसी उन लाइंस के ऊपर। सो दैट इज इट, वी हैव कवर्ड ऑल द एग्जॉस्टिव केसेस, सारे केसेस कवर कर लिए एग्जॉस्टिवली, है ना, कोई ऐसा केस पॉसिबल ही नहीं है कि जो इसके अलावा पॉसिबल हो फर्दर, राइट। तो गाइज लाइक दिस वी हैव कवर्ड ऑल द पॉसिबल केसेस, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप दोबारा रिविजिट थोड़ा पीछे करके दोबारा देख सकते हो, लाइक यू कैन, लाइक आपके पास तो फैसिलिटी है वो चीज, वीडियो को पीछे करके दोबारा देख सकते हो अगर कहीं पे किसी पॉइंट पे डाउट है, राइट। सो दैट इज इट गाइज, दैट वाज द क्वेश्चन ऑफ INMO 2008, फोर्थ क्वेश्चन। थोड़ा कॉम्बिनेटोरिक्स वाला टाइप का काम है क्योंकि आपको केसेस बनाने पड़ रहे हैं, यू हैव टू कंसीडर अ फ्यू थिंग्स, राइट। बट इन द एंड आई होप आप सबको क्लियर हो गया गाइस, समझ में आया। सो गाइस इफ यू एंजॉयड दिस क्वेश्चन, लर्न समथिंग फ्रॉम दिस, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। आपको पुरानी चीजें भी मिलती रहेंगी और नया कंटेंट जो भी डलता है तो आपको उसके बारे में नोटिफाई होता रहेगा, राइट। सो दैट इज इट फ्रॉम माय एंड टुडे गाइस, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल द बेस्ट, बाय गाइस, टेक केयर।